Hello students, today I am going to continue chapter 5th of OCM Standard 11 Commerce Forms of Business Organization 1. Under that, the first session, extra session, we already completed the types, 3 types of the partners. Let's start with the 4th type. Before that, we completed active partner, sleeping partner, that is the dormant, and third one, nominal partner. It is very important. Nominal partner is important because he is giving his name. So we completed these 3 partners. Now let's start with the 4th partner, that is partner in profit only. The name suggests. As per the name, the partner is only in profit. That means he will take the benefit in the profit only. That means he will be not in the loss. Exactly. He will be not in the loss, right? But sometimes, as per the agreement, he has to pay the loss, but it as per the agreement, right? So, partner in profit only. Let's start with that. If a person is made a partner in the firm, so एक person जो होता है, they are making or we are taking him as a partner in the firm. So he is become a partner of the firm. That person to take advantage of his स्पेशल स्किल. अगर हमको किसी की स्किल चाहिए, राइट, उसका कोई एक पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए, राइट, और उसका कोई एक्सपीरियंस है वो चाहिए, देन सच पार्टनर, वो पार्टनर क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. सो गाइस, partner in profit only means if a person is made a partner in the partnership firm to take the advantage of his skill, his knowledge and his experience, then such person is known as the partner in profit only. अगर हम कोई एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल को हमारी फर्म में पार्टनर बनाते उसकी स्किल, उसका जो स्किल है, उसका जो नॉलेज है और उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से, that means कि we want to take as a firm, we want to take all these 3 things or maybe 1 or 2 things from his or her side, then and then he or she will become the firm's partner. At that time known as the partner in profit only. तो उसको हम सिर्फ प्रॉफिट में प्रॉफिट में हिस्सा देंगे. So that is the profit only. So this partner or the partner in profit only may be sometimes or may not be, right, giving or bring the capital, but is entitled for profit. So इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर जो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली में होता है, समटाइम्स ही मे और समटाइम्स ही नॉट कमिंग विद द और ब्रिंगिंग द कैपिटल इन द फर्म बिकॉज ही इज द पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली. सो इसका मतलब ये होता है कि वही आदमी जो पार्टनर बना है उसको प्रॉफिट में ही हिस्सा मिलेगा, वो कैपिटल शायद नहीं लाएगा और एज पर द रूल्स नहीं लाता है, लेकिन समटाइम्स वो लाएगा. सो ओनली मे और मे नॉट ब्रिंग द कैपिटल. पैसा लाने की, कैपिटल लाने की उसको कंपल्सन नहीं है, डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म एक्ट. पार्टनरशिप फर्म एक्ट तो बहुत अलग अलग चीज बोलता है, लेकिन एज पर द एक्ट मे बी ही विल कम और नॉट. सो पार्टनर इन द प्रॉफिट. Also, one important point is that partner, he or she has not to share loss of the firm. मैंने आपको बोला, he will not or she will not share the loss of the firm. उसको लॉस में अपना हिस्सा नहीं देना है. Sometimes the firm prepare their own partnership deed. At that time, this point is removed. So he has to or she has to give the part in the loss also. But when the word is used profit only, तो profit नहीं होगा. So 3 चीजें. पार्टनर कब बनेगा? उसके पास स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस है, उसका बेनिफिट लेना है, पहली बात. दूसरी बात, ऐसा पर्सन जब पार्टनर बनेगा, राइट, उसको शायद कैपिटल लाना है, शायद नहीं भी लाना है, डिपेंड अपॉन द फर्म पार्टनरशिप. एंड थर्ड वन, ही विल नॉट शेयर द लॉस. 3 points are there and very easy. 1 mark is there, you can write easily. Next one, partners by an estoppel. Very important point. Partner by an estoppel or holding out. ये प्रतिरोधात्मक पार्टनर है. ये पार्टनर ऑफिशियली फर्म का पार्टनर नहीं होता है, राइट. सी लेट्स सी पार्टनर बाय एस्टॉपल. सो दिस पर्सन, वन पर्सन इज देयर हु हैज नॉट साइंड द पार्टनरशिप डीड. हम इसके बाद जो पॉइंट आएगा थर्ड, इसके बाद
इसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, और उसके बाद जो पॉइंट आएगा दैट इज अ पार्टनरशिप डीड, दैट इज वन टाइप ऑफ द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। एक करार होता है, एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच, राइट। वो एक एग्रीमेंट है जो पार्टनरशिप डीड है, उसमें ही और शी हैज नॉट साइंड द पर्टिकुलर डीड बट राइट डज नॉट ब्रिंग कैपिटल, वो पैसा भी नहीं ला रहा है, एंड ऑल्सो डज नॉट शेयर द प्रॉफिट, कुछ भी नहीं करता है। He is not or does not sign the partnership deed. He does not bring capital. He does not share profit. तो भाई काम क्या है? वही काम है उसका, see. But on the basis of his or her behavior, who a person when third party assure or assume him as a partner, then he is called partner by estoppel or holding out। बहुत लंबा प्रोसेस है समझने के लिए, लेकिन वेरी इजी। कोई एक पार्टनर है, कोई पर्सन है, कोई बंदा है, he is not signing any partnership deed, he is not a part of partnership firm, he is not taking any benefit from the partnership firm, राइट। वो कुछ कैपिटल भी नहीं दे रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा है, और प्रॉफिट में भी उसको कोई हिस्सा नहीं लेना है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर बिहेवियर, उसका वर्तन ऐसा होता है, उसका बिहेवियर ऐसा होता है, व्हेन द थर्ड पर्सन दैट इज दैट पर्सन बाय एस्टॉपल, राइट, जो पर्सन ये काम करता है पार्टनरशिप फर्म, और उसके सिवा जो थर्ड पर्सन होता है, राइट, थर्ड पार्टी, दे कैन एज्यूम हिम एज अ पार्टनर, then he is called which person? That person who is doing all these things, and he is called partner by estoppel or holding out। ये ऐसा पार्टनर है जो प्रतिरोध है कोई फर्म के लिए, शायद में भी ये पार्टनर फर्म के अगेंस्ट में नहीं जाता है, लेकिन फर्म के नाम का यूज करता है, हालांकि उसने कुछ भी नहीं दिया है फर्म को, फर्म से कुछ लेता भी नहीं है, लेकिन अपने बिहेवियर से वो ऐसा लगाता है और ऐसा दिखाता है कि आई एम द पार्टनर ऑफ द सो एंड सो पार्टनरशिप फर्म। ओके, देन द थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन है, समझ लो कि आई एम द पार्टनर बाय एस्टॉपल। आप लोगों के सामने मैं ऐसा बिहेव करता हूँ, आई एम द पर्टिकुलर पार्टनर ऑफ ABC पार्टनरशिप फर्म, ऐसा मैं बिहेव करता हूँ આપણી જ છે, બધું આપણું જ ચાલે ત્યારે मैं बात करी તમે તેની वस्तु લઈ આવજો, તમને ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે, दैट इज द सिंपल थिंग। एक सामान्य इन्फॉर्मेशन તમને આપું, दैट्स व्हाई द पर्टिकुलर लैंग्वेज इज यूज्ड, बट सिंपल थिंग इज दैट सो एज पर हिज और हर बिहेवियर आई एम द पार्टनर, आप जाके ले लो, सो एज पर हिज और हर बिहेवियर द थर्ड पार्टी बिहेवियर ही इज द पार्टनर। अब क्या होगा, द थर्ड पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ माइंड, दैट मीन्स के मेरा जो बिहेवियर है उसके हिसाब से वो लेने जाता है और उसको डिस्काउंट दिया जाता है, और कंपनी और पर्टिकुलर फर्म लॉस में जाती है, तो ही इज द रिस्पांसिबल पर्सन। सी ही और शी कैन नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, ये बात समझ लीजिए, मैनेजमेंट में कोई पार्ट नहीं ले रहा है, प्रॉफिट में भी कोई हिस्सा नहीं है, मैंने यहाँ बताया आपको कैपिटल नहीं ले रहा है, प्रॉफिट भी नहीं है, मैनेजमेंट में ही इज नॉट टेकिंग एनी पार्ट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। समटाइम्स थर्ड पार्टी डज बिजनेस विद फर्म, जो मैंने एग्जांपल दिया, जो थर्ड पार्टी, आप लोग मेरे हिसाब से फर्म के साथ तो बिजनेस करते हो, राइट, सो आफ्टर टेकिंग हिज क्रेडिट, मेरी क्रेडिट से आपने मेरी फर्म पर, मेरे नाम से जो मैं बिहेवियर से जो मेरी फर्म बताया उसमें मेरी क्रेडिट से आप काम करते हो, हिज लायबिलिटी बिकम अनलिमिटेड, तो उस टाइम पे मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, दैट इज द थिंग। व्हाई? सिंपल थिंग, मैंने पैसा दिया नहीं है, कैपिटल दिया नहीं है, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ, मैनेजमेंट में मेरा कोई पार्ट नहीं है, फिर भी मैं ऐसा जताता हूँ, बिहेव करता हूँ, दैट पर्टिकुलर फर्म इज अ फर्म इन विच आई एम द पार्टनर, दैट्स व्हाई माय लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाई द पार्टनर बाय एस्टॉपल, राइट, इज मेकिंग द पर्टिकुलर फर्म्स अनलिमिटेड और पार्ट बिकम अ पार्ट ऑफ द अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द फर्म, दैट इज द रीजन, बिकॉज मेरी क्रेडिट से ही थर्ड पर्सन आपकी फर्म में आता है, दैट इज द रीजन। सिंपल। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, माइनर पार्टनर, लास्ट पार्टनरशिप फर्म, दैट इज द टाइप्स ऑफ पार्टनर, नॉट पार्टनरशिप फर्म, सॉरी, टाइप ऑफ पार्टनर, माइनर पार्टनर। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, आपको मालूम है 1932 के हिसाब से, ओनली एडल्ट पर्सन अबव 18, ओनली adult person
is able to sign the deal, that is the partnership deal, right? अगर किसी को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना है, he or she must be adult, right? So adult can become the or sign the partnership deal. Partnership deed, once again I want to say you that it is one type of the agreement contract that as per the partnership act. It is not compulsory. Okay, now here in the partnership, minor partnership, partner always, sorry, we are not taking the minor partnership, but partner is always adult partner. इसके हिसाब से अगर बात करें तो, so if minor want to become a partner, cannot become a partner, वो partner नहीं बन सकता. Keep in mind, less than 18 and below the 18. So if any partner, अभी minor partner है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो if any partner dies, कोई existing partner होता है, उसका डेथ हो जाता है, after his demise, his child, right, can be made partner as a minor partner. That is the minor partner. अगर कोई पार्टनर है, उसका डेथ हो जाता है, after his demise, his child, his or her child become the minor partner of the partnership firm by default as per the partnership act and in the deed. So he or she has no liability. हालांकि वो पार्टनर है लेकिन उनकी लायबिलिटी लिमिटेड भी नहीं है. अनलिमिटेड की बात तो बाजू पर रही, उसकी पार्टनरशिप में कोई लिमिटेड लायबिलिटी होती नहीं है. सो नो लायबिलिटी. क्रेडिटर्स कांट, उसकी लायबिलिटी नहीं है, वो ध्यान रखना है. दूसरी बात, क्रेडिटर्स कांट टेक हिज पर्सनल प्रॉपर्टी. जो क्रेडिटर्स होते हैं वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते. दैट मीन्स कि इफ द पार्टनरशिप फर्म इज अंडर डेट, राइट, दैट क्रेडिटर्स कैन नॉट टेक द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ दैट माइनर पार्टनर because he is the partner, she is the partner of the firm, but both or maybe he or she is the partner as minor. That is fine. ओके, सो पर्सनल प्रॉपर्टी उसके लिए नहीं जाती है क्योंकि वो माइनर पार्टनर, उसके हालांकि उसके पास उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी उसके नाम पे होती भी है, लेकिन अगर होती है तो भी वो नहीं लेता है, नहीं दे सकता है एज पर द लॉ. सो व्हेन ही और शी बिकम एडल्ट, जब वो एडल्ट हो जाता है, मोर देन 18, अबव 18, he or she will decide to become a firm's partner or not. So after becoming an adult, and if he or she desires, then become partners of the partnership firm. अगर उसकी इच्छा होती है तो ही वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की तरह कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यू कर देगा. वॉट एवर द फॉर्मेलिटीज आर देयर, he or she will complete after becoming adult. So that is the end of the types of partners we completed in last session. Active, sleeping, nominal partner. Today, partner in प्रॉफिट ओनली, पार्टनर बाय स्टॉपर और होल्डिंग आउट, उसका सिर्फ नाम अपना यूज करता है, नॉमिनल की तरह नहीं है. नाम मीन्स वो जताता है, बिहेव करता है काइंड ऑफ पार्टनर. और लास्ट वन, दैट इज द माइनर पार्टनर. दैट इज द एंड ऑफ द टाइप्स ऑफ पार्टनर. इन नेक्स्ट सेक्शन रिगार्डिंग द चैप्टर 5, थर्ड एक्स्ट्रा सेशन, आई विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. देन एंड देन अप टू दैट we are taking the rest. So another thing I want to say that after this 3 points are given, types of partnership firm, partnership deed, and one, that is the difference between sole proprietor and partnership. Okay, thank you.